Hello everyone. So welcome to our show, the TAS, the Ankur Show. So I am your host Ankur Agarwal, who wants we will have a discussion on a very new topic, which would be career uh, discussions. Career assessment for a new upcoming graduates or the students who are going to go for the technical education. So I just wanted to welcome Mr. Rishabh Agarwal again for the his guidance and his assessment on a from the strategy perspective. So let's welcome Mr. Rishabh to the show. Okay, thank you, Ankur, and yeah, hello, viewers. So we have taken this topic that how we can guide a young generation who is passing out from school, and what are the career options, and what we need to look at in terms of fees of the colleges, in terms of reputation and career opportunities. Okay. So I will mostly cover engineering and MBA options, which I think a majority of people are doing. But there are lots of other career options. So there is no denying of this fact that we can also explore many options. But in this video, we are going more into engineering and MBA topics in terms of college education. So I think first of all, the young generation, which I think people call it Generation G, which are now passing out from class 12 and entering into going into college. So this is a major milestone, major changing event in your life. So from school, now you're going to enter into college. And in terms of college, uh, basically you have to appear into competitive exams for getting into some good engineering college, and for MBA, you need graduation first, and then you can enter into some premium MBA colleges. So we will cover first engineering, and later on we will come to MBA. And I also understand that there are other career options in 12th also, because you can directly apply for Indian Army, National Defense Academy exams, and there are some similar exams also in other fields which you need to look for. Then there are MBBS also. People go for MBBS option for medical sciences. Legal lawyers also. There are good colleges in law field. Even masters and mass communications. This is also one of the growing fields. So I won't say that only engineering is an option, so that is clear, but we have taken this video from engineering and MBA perspective, because we have noticed that many people are doing this in these days, so that's why. And so the thing is that education, we need to understand that tuition fees is also very much going in a big range in terms of there can be people who are having engineering within 50,000 per year, and there are people who are having engineering in the range of 6 lakhs or maybe more per year. So you can see that there the difference can be 10 times or even 15 times. So it's a big burden on a middle class family in terms of education. I do remember that some of my knowns have studied it at very less fees, maybe long back, but it is long back that they studied at very less fees. But nowadays, so earlier, 20 years back, fees used not to be a much of a subject for parents in the college, because fees was really low. But now fees has touches that kind of figure that you really need to plan. Now fees can be for engineering in private institutes. Fees can be somewhere around 25 lakhs for total 4 years or 5 years degree, and then there can be for MBA it can be much more also. So what we need to look at from career point of view, from industry point of view. So I will first of all I will give a big let me big industry secret which many people are not aware of, and let me break this wrong understanding that if your college is having high fees, then it is good.
first of all, just That is just a dilemma. just That is just a dilemma. What so that generally people do believe like from the if we talk about top 50 colleges, like top 10 would be like a very small percentage of people, but we want to cover the big audience, which would be like going to the top 50 or top 100 ranking colleges. So the idea, the thinking in most of the public these days is student is this, like if you are not going to IIMs, then all the colleges which are charging very hefty amount of money are good colleges, because at the end of the year 2 or 3 years after their graduation or maybe post graduation, they'll get a very good package, because placement is one of the factors in deciding the colleges, and based on the placement they will be charging the fees. So government college that is dependent on like ranking, which average student might not be able to get. So for the private college, if they are charging high fees, then the placement is seems to be like that would be more than like a good average package would be the minimum package of like 8 lakhs, 9 lakhs, 10 lakhs. That's what their is understanding is. But sometimes uh, we blame it, we blame the market, like it's 2020, like it's 2022 or 21, when there is a pandemic of COVID. So because of that there are no placements, IMS is not getting a good placement, so they have also not got a good placement in their time. So there are a lot of scenarios of, so if you're buying if you're buying that fees, like giving the fees for next 2 to 4 years and giving a very huge amount of money by taking the loans, then you are that accused will not be an accused. You cannot give that accused to the lender. You need to pay them. So if you're going to a college which is charging a low fees in a private college, what is the thing you should consider apart from fees? Like you can save the fees also, and you need to have a good education, because in that period of time, what you will learn is like that experience, that education would be that technical education with with it, like you would be spending your whole life with that brand name of that college, and the fees you would be spending it will not get return if you don't get a good package. So these are the three major factor what I think. So let's get into okay. this. Yeah, good point, Ankur. I agree that we have touched some of the good points. So let me just capture few of the important points you just mentioned. Education loan. So basically, if your college education is very high fees, having tuition fees, and your parents are from middle class background, then there are high chances that you will have to take, parents will take on your behalf education loan. So one thing which we will cover in this video, that what needs to be taken care of before going for such thing, education loan. The second point you have covered, you just mentioned that college sticks with you throughout the life. So I will also agree with this, that college becomes your middle name. So you have your name, then you have your surname. So your name Ankur, and then there is Agarwal. So basically, it is like this. But college is your middle name, because you're one of the people who recognize you by your college. That is also sticks with you throughout the life. So that is also, you need to understand that it a good college reputation also matters a lot in terms of your reputation. But I won't say that it is the only deciding factor in the terms of career success. अ, सब कुछ चलता है लाइफ में, हर चीज़ मैटर करती है, खाली ऐसा नहीं कि एक अच्छा खाली कॉलेज से ही लाइफ चलेगी, तो ये भी आपको समझना है। और एजुकेशन लोन पे मैं पहले आता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है इंडिया में कि फीस बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इनफैक्ट कोचिंग की भी फीस काफ़ी है आजकल। तो आईआईटी की कोचिंग होती है या किसी और कंपटीशन की होती है, नीट नीट एग्जाम से, तो कोचिंग काफ़ी ज़्यादा फीस है। बच्चों को मैंने देखा है कोटा में जाते हैं, 2-2 साल कोटा में रहते हैं या 2 से भी ज़्यादा रहते हैं, और उनकी बहुत अच्छी फीस होती है। पेरेंट्स काफ़ी आए मुझे पेरेंट्स पे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें काफ़ी करीब से देखी हैं कि लोगों को काफ़ी रहता है कि अपने पेरेंट्स
से वो उनको एक अच्छी खासी फीस उनको अपनी सेविंग से देनी पड़ती है। और तो अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में? तो आपको ये समझना है कि कोचिंग की फीस तो फिर भी आई थिंक एजुकेशन लोन में कोई नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही आप कोई कॉलेज चूज करते हैं, और मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा है, और फीस बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादातर लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। अब आपको एजुकेशन लोन में भी दो चीज़ समझनी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस लोन आप लेते हो अपनी लाइफ में, जो कि एक मेजर कॉस्ट आती है करियर में। तो हाउस लोन आपका होता है, मान लीजिए 80 लाख का, इंडियन सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, 80 lakhs रुपीज। सो यू टेक दिस लोन फॉर 20 years, फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ यू बाई। अब इसमें 20 years में क्या होता है कि आप ईएमआई देते हो, ठीक है। एक लोन होता है कार लोन, कॉमन है। तो कार लोन में आपकी मान लीजिए 10 लाख का लोन है, और वो आपका ड्यूरेशन हो सकता है 5 साल का हो, तो उसकी ईएमआई देते हो। एजुकेशन लोन में ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं मिलता है, मोस्टली 5 years या 7 years का ज़्यादा है ट्रेंड। और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट तो वैसे मतलब ठीक रहता है, मीडियम लेवल पे है। हाउस लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन इंडिया में, जो कि एक एक्चुअली बहुत गलत बात है। एजुकेशन लोन का कई फॉरेन कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट एकदम मिनिमम होता है, लेकिन इंडिया में तो एजुकेशन लोन को वो काफ़ी हायर साइड रखते हैं। काइंड ऑफ पर्सनल लोन ही बना दिया है, लेकिन उससे थोड़ा कम है। और थोड़ा कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, लेकिन फिर भी बहुत मतलब फेवरेबल नहीं है। सबसे मेन दिक्कत क्या है कि एजुकेशन लोन में आपके पास कोई चीज़ है नहीं वापस बेचने के लिए। आप कार लोन में अगर आप चुका नहीं पा रहे हो तो आप कार वापस बेच सकते हो, आपका मतलब मोटा मोटा आ ही जाएगा पैसा वापस, थोड़ा सा कटेगा। हाउस लोन में भी यही चीज है, आपको अगर लोन नहीं चुका पा रहे हो तो आप हाउस बेच दोगे तो भी आप लोन फ्री हो जाओगे। एजुकेशन लोन में आपके पास कुछ एसेट ऐसा बेचने का नहीं है, तो आप बेच नहीं सकते हो, तो आपको चुकाना ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी। और प्रॉब्लम क्या है कि करियर के स्टार्ट में इतना पैकेज नहीं लगता है जैसा लोग सोचते हैं, कि आप तुरंत ही जाके लो बैंक के मुंह पे मार दिया कि लो तुम्हारी फीस सारी वापस दे दिया 1 साल बाद। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। बहुत अच्छा खासा आदमी पे आता है स्ट्रेस, और इतनी यंग एज के बच्चों पे इतना स्ट्रेस आना अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, या कोई अपना ड्रीम कुछ और उसको समझ में आ रहा है करना चाहता है, तो वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो लोन चल रहा है। अच्छा, दूसरा, इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा है प्रॉब्लम, फॉरेन कंट्रीज में कम है, कि लोग अपना पैशन चूज नहीं कर पाते हैं सही से। तो पैशन आपका कहीं और है, लेकिन आप सब बाकी लोगों को देख के आप इधर आ जाते हो कॉलेज वॉलेज में, तो वो भी है। तो एजुकेशन लोन आप क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि फीस बहुत महंगी है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि आप ऐसा कॉलेज चूज करो जिसकी फीस कम है। अगर सेम रेपुटेशन दो कॉलेज की है और दोनों की फीस में मान लीजिए एक की फीस 1 लाख है पर ईयर, और एक की फीस आपकी मान लीजिए 6 lakhs है पर ईयर, तो आपको 1 लाख वाली लेनी चाहिए। ये तो कोई ब्रेनर वाली बात ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को एक्सपोजर नहीं है, कॉलेजेस के इतने नाम ही नहीं पता है, और लोग कोचिंग में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और फिर लोगों को लगता है कि बस जो इधर उधर से पता चल गया बस उसी में चले जाते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी कॉलेज का, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सब चल रहा है। और इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है जिनकी फीस कम है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है मोस्टली, लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट में जा सकते हैं लोग। हाँ दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, और इंडिया में मतलब आप एक्सप्लोर करिए तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, और आपको बिल्कुल कम फीस पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, इंडिया में स्कॉलरशिप का कंसेप्ट थोड़ा सा कम है फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में। फॉरेन कंट्रीज में आपको आराम से 50% स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी अच्छे कॉलेज में, लेकिन इंडिया में आई थिंक यहाँ इतना कॉमन नहीं है। स्कॉलरशिप को मोस्टली मिसयूज किया जाता है in हम्म। most of the colleges. Scholarship को बहुत ज़्यादा misuse किया जाता है, like because scholarship is basically mostly given on basis of the income of the parents, which is like most of the time most of the people I've seen in my experience was they use कि वो fake document show करके and they were getting the scholarship. So they were showing that their family income is less than the required income for the sustainable income, and they were producing the documents and they were getting the scholarship. So it was not used in the right way. So what I've seen. So but the agenda of the topic is basically from the fees perspective. So we can come back to that. ओके, सो इसमें एक चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि आप इंडिया में जब पढ़ रहे हो, आप फॉरेन में भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन फॉरेन एजुकेशन में दो चीज़ है। ग्रेजुएशन आप अगर करने जाते हो
तो ग्रेजुएशन मोस्टली 3 या 4 इयर्स का होता है। 4 इयर्स ज़्यादा आप एक्सेप्टेबल है 3 इयर्स के कंपैरिजन में। तो 4 इयर्स का तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा ग्रेजुएशन का। तो आप फॉरेन अगर आप जा रहे हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हो कंफर्टेबली, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। तो आप उन दोनों में से एक चूज कर सकते हो। उसमें फिर आपको कॉस्ट कम आती है, और उस टाइम तक आप थोड़े बड़े भी हो जाते हो, आप थोड़ा समझदार हो जाते हो। तो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा इजी रहता है अपने किड को भेजना बाहर, तो ये चीज़। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग ग्रेजुएशन में भी भेज रहे हैं। तो उसमें दो चीज़ है, अगर आपकी फैमिली कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब फिनेंशियली, तब तो भेजा जा सकता है, हाँ, जो अपर सेगमेंट है। लेकिन अगर जो मिडिल सेगमेंट है इंडिया में, उनके लिए तो काफ़ी सोचना पड़ेगा उन्हें इस डिसीजन के लिए कि। और आई थिंक अफोर्डेबिलिटी से बाहर ही आता है नॉर्मली 4 इयर्स वाला कोर्स तो, बाहर की कंट्रीज में। फिर भी लोग करते हैं, एमबीबीएस में काफ़ी कॉमन है ये कंसेप्ट। अच्छा, दूसरा क्या है कि वही जो मैं कह रहा था कि आपको फीस का स्ट्रक्चर समझना होगा, और आपको फीस उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए जितना आप बहुत मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि फिर आप लोन में अगर चले गए तो बहुत स्ट्रेस आ जाएगा फैमिली पे, और हो सकता है। एक लॉजिक है कि what is the minimum package what a student can expect while uh, getting the placement average minimum package. ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई एलिमेंट्स हैं। कॉलेज, कुछ जो टॉप प्रीमियम कॉलेजेस हैं उनमें पैकेजेस ऑब्वियसली हायर साइड लगते हैं एवरेज में, लेकिन उनमें भी बहुत लंबी रेंज होती है। एवरेज कैन बी अ मिसलीडिंग फिगर। Starting package. स्टार्टिंग पैकेज आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रेंज जो अभी भी चल रही है वो तो 3.5 lakhs पर ईयर से स्टार्ट हो रही है, और हायर साइड टॉप कॉलेज में तो चलिए 50 lakhs भी जा सकती है। ठीक है, तो हम्म। just given some example to this discussion. So if the package we assume it 4 lakhs, so monthly like they would be getting the gross salary as somewhere around 30,000. Okay, for this calculation we take it as a 30,000 as a fees, and the average fees of the college is per year would be like for the calculation we can take it as a 1 lakh or 5 lakh, Average, which is giving that placement as 30,000. I think for government colleges, fees Maybe can, that time. let me just, so in the government it can be somewhere around 2.5 lakhs per year Okay. in some good colleges, and in private it can be mostly in the range of 5 lakhs per year. 5 lakhs. This is on the lesser, this can be higher figures also, there can be. We will have to, And the placement is like they're getting that placement in these IT companies. placement is, yeah, mostly like this, yeah. So if we are going for this 2.5 lakhs as a fees for 1 year, and if it is a 2 years MBA program, for example, 4 years engineering program, then it is like roughly around 10 lakhs to 15 lakhs they have given. So 15 lakhs, if we consider like 10 lakh, for example, then they are assuming the rate of interest is of 10% or 10 to 11%, they would be getting roughly around for the 5 years they would be getting a EMI of around 20,000, 25 30,000. Average would be maybe I'm just assuming on the lower side it would be around 25,000, because somewhere around 25,000. And if they are getting the fees of 30,000, then that 25,000 salary of 30,000, then it is impossible to save anything from that fees. So that first 5 years will go only in spending that like a loan repayment of that loan only. So that is the main thing what I am trying to like convey in this podcast for today. Like that fees, they need to decide that, because after 5 years paying that fees, like roughly if they are paying that
25-30,000 and getting that placement of 30,000, and in the first 2 years they might not be getting any increment, like major increment. It would be 10% average or 10 to 15%. So what if they have started their career with 30,000 per month, and they are paying most of their fees, most of their loan in the like salary in the loan repayment. So after 2 to 3 years, when the increment it would be around 20% or 10 20%, if we say that, then also that major chunk of salary will be gone in the repayment of loan. So after 3 or 4 years, when their loan would be like repaid, maybe of 5 years, when their loan would be repaid, then their experience would be 5 years. Their salary would be drastically, it would be increased, but then they would be able to save the money after 5 years. So if they take that scenario as a case one, we if we if we decide, instead of going to the very high fees college, if they go to choose a very maybe average college and with a low fees, maybe where education, that they need to focus on the education part instead of placement. But the priority should be education, quality of education, and the fees can be the filter they can use. सो ये यू आर राइट, आई एग्री। इसमें क्या चीज़ है कि एज आई सेड अर्लियर कि ये एक मिथ है कि आपकी फीस अगर ज़्यादा है कॉलेज की तो आपका कॉलेज बहुत अच्छा रैंकिंग है, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉलेज कंपनीज में आप एक बार जॉब लग जाती है, आप अंदर आते हो तो अनलेस एंटिल आपका ब्रांड नेम बहुत ही प्रीमियम हो, तब तो ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई किया जाता है उस चीज़ के साथ। अदरवाइज फिर नहीं होता है, मतलब या तो आप उसमें हो या तो नहीं हो, फिर सब बराबर है। फिर आपकी फीस भले ही 25 लाख रही 4 साल की और किसी और की मान लो 4 लाख फीस थी, तो वो दोनों बराबर ही हैं। तो हाँ, 4 इयर्स के बाद लेकिन आपके ऊपर जो लोन अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको स्ट्रेस देगा अगले 4-5 साल। तो वो चीज़ देखनी है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि हाँ ठीक है, कॉलेज तो लाइफ लॉन्ग आपको रिटर्न देते हैं आपकी एजुकेशन। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई पे फोकस ही मत करो, फोकस तो आप आराम से कर सकते हो, पढ़ाई तो करना है जरूरी है। लेकिन हाँ, ये कि फीस जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, और आपको अच्छे ऑप्शंस देखने चाहिए जिसमें फीस कम हो और रेपुटेशन भी अच्छी हो। और ऐसे हैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो मतलब गवर्नमेंट के भी हैं, इनफैक्ट कुछ मेजर इंडस्ट्रियल बॉडीज के भी हैं जो अपने कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो वो आप देख सकते हो। इनफैक्ट लोकेशन पे आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ तो ऑल ओवर इंडिया में कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई कि आपको पहले फीस वाला एंगल आपको, फिर कॉर्पोरेट में अंदर आप एक बार आ जाते हो तो फिर जैसा मैंने बोला कि आपको पैकेज में क्या है कि स्टार्टिंग पैकेज लो लगते हैं लेकिन पैकेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये एक इंडिया में एक अलग प्रॉब्लम है कि लो पैकेज से हाई पे जाने वाले जो जर्नी है वो बड़ी मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। अब क्या हो रहा है कि बच्चा तो स्टार्टिंग से उस पे खर्चे इस तरह के आते हैं लोन वोन के, और लाइफ में भी एक एनर्जी लेवल हाई होती है, उस टाइम आदमी की बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पैकेज उस लेवल का नहीं होता है। तो या तो पेरेंट्स आपके बहुत स्ट्रांग हैं और उन्होंने फीस वीस पे उन्होंने खुद ही संभाल लिया, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बहुत स्ट्रेस में आ जाओ। तो मेजर फोकस वही है, और जितना अच्छा कॉलेज में मिल जाए वो तो मतलब कोई बात नहीं है। फॉरेन में भी आप थोड़ा बहुत ऑप्शंस देख सकते हो। अब मैं सेकंड में टच करूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं टच करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आपको मान लीजिए ग्रेजुएशन जो कि आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छा ब्रांड नहीं मिल पाया तो आप उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आपको मान लीजिए आईआईटीज का आपको बहुत क्रेज है और आपको आईआईटी नहीं मिला ग्रेजुएशन टाइम में, तो आपको ऐसा डिसहार्टन होने वाली कोई बात नहीं है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आईआईटीज में जा सकते हो। इजी है काफ़ी, मतलब इतना टफ नहीं है। अगर आप आईआईटी का बीटेक में एडमिशन थोड़ा टफ होता है, लेकिन आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में इतना टफ नहीं होता है, लेकिन जॉब्स वगैरह अच्छी लगती हैं, दोनों की अच्छी लगती हैं। तो ये भी एक मिथ है कि आईआईटी में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई फायदा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही प्रॉपर मिथ है। आईआईटी का पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जा सकते हो, और आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास एमटेक का भी ऑप्शन है, एमबीए का भी ऑप्शन है, और दोनों ही एडमिशन आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप जा सकते हो। तो आपको मेन ये आपको फायदा है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन अगर आपने कम फीस में कर ली
तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आईटी से कर लिए तो आपके साथ एक ब्रांड नेम भी लग गया, और आपको मतलब फीस का भी उतना लोड नहीं आएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन की सैलरीज भी थोड़ा इंडस्ट्री में हायर साइड रहती है, तो वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में इतनी ज़्यादा फीस दे डाली कि आपका लोन वोन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो आप हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही ना पाओ, थोड़े टाइम तक आप उसी में मतलब लोड आ जाएगा ना एकदम से। तो ये चीज़ एक देखनी पड़ेगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में फॉरेन में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं, स्कॉलरशिप आ जाती है। आप एमबीए करना चाहते हो तो जी मैट का एग्ज़ाम है, और बाहर के कई अच्छी कंट्रीज हैं, इनफैक्ट कई कंट्रीज में फीस का बहुत अलग अलग सिस्टम है। यूएस में फीस हायर साइड है, लेकिन कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जो बहुत स्कॉलरशिप देती हैं। आई थिंक मैं मतलब मुझे भी याद है कि हम लोग भी अपने टाइम पे देखते थे, तो स्पेन में भी कॉलेज था, जर्मनी में कॉलेजेस थे जिनकी फीस एक्चुअली मतलब काफ़ी कम थी यूएस के कंपेयर। उस टाइम यूएस में 1 ईयर की फीस किसी टॉप कॉलेज में 1 CR होती थी, 1 करोड़। एंड जो मैं यूरोप में देखता था तो 10 लाख 15 लाख इस तरह फीस मिल जाती थी आफ्टर स्कॉलरशिप। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। और एक लॉजिंग का खर्चा आपके ऊपर आएगा, तो लॉजिंग भी एक ठीक ठाक मेजर एक्सपेंस होता है। तो ये सब चीज़ें देख के आप लाइफ डिसाइड कर सकते हो, लेकिन फॉरेन में पढ़ने का फ़ायदा तब है जब आप फॉरेन में ही करियर बनाना चाहते हो ज़्यादा, तो आपको एक ब्रेक मिल जाता है। स्ट्रैटेजी इसमें हम लोग चूज कर सकते हैं कि मतलब मेरा तो यही मानना है कि बी स्मार्ट, भीड़ से अलग चलो। थोड़ा आप कुछ नीश कोर्सेज में आप इंटरेस्ट लो। अपने एक मेंटरशिप, हमेशा अपने को ना किसी बड़े से कंसल्ट करो लाइफ में करियर के लिए। आपसे जो 5 साल बड़ा हो, इनफैक्ट 10 साल बड़ा हो, वो आपको जो गाइडेंस देगा ना वो बहुत हेल्प करेगा आपको। जो मतलब वो आपको गाइड कर सकता है कौन सी मतलब किस फील्ड में जाना चाहिए करियर में, किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए। और आपका इंटरेस्ट भी मैच करेगा तभी आप लेना, मतलब इंटरेस्ट वो आपसे पूछेगा कि आपका क्या चीज़ स्ट्रांग है, तब आपको देगा। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी राय मिल जाती है। तो स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही बस बोलूंगा, मैं सिंपल लाइफ का एक वन ऑफ द आई थिंक मैंने जो आइडेंटिफाई किया है। हाँ वो तो है कि रेड ओशन होता है और एक ब्लू ओशन होता है। तो आप अगर रेगुलर चीज कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं तो आप रेड ओशन में आ गए। और ब्लू ओशन जो होता है जिसमें बहुत कम लोग हैं, तो नीश फील्ड में आप जाते हो। आपने एकदम ही पर्टिकुलर एक यूनिक फील्ड पकड़ लिया कि मेरे को ये लाइन है। स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट इसमें क्या मतलब उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है रेड ओशन स्ट्रैटेजी? रेड ओशन बिजनेस कंसेप्ट, रेड ओशन तो एक स्ट्रैटेजी कंसेप्ट है, ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन। तो रेड ओशन मीन हो गया कि आप मान लीजिए एक मार्केट में जाते हैं जहाँ कपड़े की दुकानें हैं, तो ढेर सारी हैं, 100 दुकानें कपड़े की। तो आप तो कंपटीशन में चले गए ना, आपके पास यूनिक एडवांटेज कुछ है नहीं, तो टर्म्स एंड कंडीशन तो कस्टमर डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। तो आपकी पढ़ाई अगर एकदम कॉमन है जो सबके पास है, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर सबने किया है, तो एक हो जाता है ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रेपुटेशन है एवरग्रीन ब्रांच। अब एवरग्रीन ब्रांच है तो एवरग्रीन ही है, सब कुछ बढ़िया भी और सब कुछ बढ़िया नहीं भी है, कॉमन हो गया। दोनों चीज एक साथ चल रही है। तो अब उसी के कंपैरिजन में आप एकदम यूनिक सा कोई फील्ड पकड़ लिया, जैसे ओशन, ओशन में भी कई पढ़ाई होती है, जियो थर्मल इंजीनियरिंग आईआईटीज में है इस तरह के कोर्सेस। तो उसके लिए एकदम ही यूनिक कंपनीज आती हैं, स्लम बर्जर आ गई, बहुत हाई पैकेज देती हैं। लेकिन उसमें एक चैलेंज भी रहता है, उसमें एक चैलेंज ये आ जाता है कि अगर आपकी फील्ड की में आपकी जॉब नहीं लगी तो थोड़ा सा आप अनाथ की तरह फील करोगे, तब ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ हाँ। हाँ तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा नीश हो गए तो बहुत ज्यादा नीश ही हो गए फिर तो। एक जॉब मैंने देखा एक फ्रेंड का, ही गॉट इनटू ऑयल. So most of the time he is out of the country. Matlab he is not, he can't live with his family because he is in like he is living in ocean, like in the sea. Like he need to spend like 9 8 months in that ocean. So एक idea और था from the strategy perspective. What I was thinking as a red ocean strategy, mix of red ocean and blue ocean strategy. Since our agenda is basically how we can use this strategy concept while choosing the career as well. So fees is one of the criteria, one important criteria. But from the strategy perspective, if you are not going to the high fee college, if you are going to the average college which is a low fee,
These are the two criteria. Then, strategy point of view, you can add one more course simultaneously, like adding some ad hoc certification, which can add some value to the course, because it's a Z ocean field actually. Since like मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की 100 लोग और हैं, लाख लोग और हैं, तो आप एड ऑन कोर्स कर सकते हो, सेव योर फीस इन दैट कॉलेज ओके। एंड सो वन ऑफ द थिंग मैं एक तो ये मैं बोलूंगा कि कोई कॉलेज एवरेज नहीं है, कोई कॉलेज खराब नहीं है। आप फीस को चूज करो, लेकिन कॉलेज की रेपुटेशन में मैं नहीं कह रहा। आप अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है जिसकी रेपुटेशन हाई है, तो आप उस पे जस्ट बिकॉज की फीस ज्यादा है इसलिए मैं नहीं लूंगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। एटलीस्ट मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आपको मैं कह रहा हूँ कि सेम रेपुटेशन के दो कॉलेज हैं और उसमें एक की फीस कम और एक की ज्यादा है, तो आपको चूज करना चाहिए कम फीस वाला, अगर सेम रेपुटेशन है। लेकिन अगर रेपुटेशन डाउन और फीस भी कम है, तो वो चीज मैं तो नहीं रिकमेंड करता। तो आपको ब्रांड तो मैटर करता है। तो मतलब देयर आर गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी फीस 50,000 पर ईयर है, और देयर आर आईआईटी जिनकी फीस 2.5 lakhs पर ईयर है। तो ऑब्वियसली आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50,000 पे जाओ, फिर तो आपको आईआईटी लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि करियर ऑप्शंस में तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मर्चेंट बहुत ऑप्शंस है, मर्चेंट नेवी भी आता है, इनफैक्ट पायलट का भी कोर्स है। तो ये सब भी ऑप्शंस बहुत है, आपको चूज करना होगा कि आपका पैशन कहाँ पे है। और द थर्ड पॉइंट इज कि रेड ओशन आपने जो बोला कि अपने आप को यूनिक बनाओ जॉब में। तो आप जॉब में एंट्री से पहले आप अपना कुछ, एज यू राइटली सेड, कि आप अपना कुछ स्किल सेट बढ़ा लो। आपको थोड़ा सा यूनिक होना पड़ेगा। रेड ओशन से अगर आपको बचना है, आपको रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन में जाना है, तो यूनिक बनो। यूनिक आपको होना पड़ेगा कि आप बहुत एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर चीज में जो आपको यूनिक बनाता है। तो जैसे आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हो, बहुत अच्छी डिमांड है इंडस्ट्री में। आप जापानीज कर लो, कोरियन कर लो, चाइनीज कर लो, इन सब की तो डिमांड बहुत अच्छी है। कंपनीज बड़ी बड़ी आती हैं इंडिया में, और वो अच्छा पैकेज ऑफर कर सकती हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी इंजीनियरिंग के साथ आपको वो भी आता है, लैंग्वेज भी आती है वाली। फिर आप अच्छे माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज कर सकते हो, एमएस के, जो आपको अच्छा होना चाहिए एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में, जो मतलब आपको मतलब प्रॉपर स्ट्रांग बनाता हो। और आजकल एआई तो आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको उसमें स्ट्रांग होना चाहिए कि उसका आप क्या क्या यूज कर सकते हो प्रैक्टिकल जॉब में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने को रेड ओशन से बचाना है, तभी आप फास्ट करियर पे फोकस करोगे। तो अभी तो हम पहले कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर रहते हैं अभी। तो कॉलेज में मेरा वही सजेशन है कि फीस पे आपको फोकस रहना चाहिए, रेपुटेशन देखना होगा कॉलेज की। थोड़ा सा आपको अपना वो भी देखना होगा कि एलुमनाई नेटवर्क कहाँ पे एक्टिव है। तो कुछ जैसे कॉलेजेस होते हैं जो नॉर्थ के कॉलेज है, तो उनका एलुमनाई भी अच्छा स्ट्रांग होता है उस एरिया में। तो आपको बहुत हेल्प करता है एलुमनाई, लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प आता है। एलुमनाई कैन हेल्प यू इन लॉट्स ऑफ वे। तो अब आप एकदम ही कहीं बहुत ही रिमोट एरिया से इंजीनियरिंग किया या कुछ और पढ़ाई की, तो वो एलुमनाई तो शायद आपके एरिया में फिर नहीं इतना दिखेगा आपको। तो वो भी एक आपको देखना है कि, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने से किसी बड़े से राय जरूर लेनी चाहिए, बहुत हेल्प करता है। आपका कोई 5 years बड़ा, कोई घर में कजिन हो, कोई 10 years बड़ा हो। मैंने ये देखा है लाइफ में, जिनके बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटों को तो बहुत बढ़िया गाइडेंस देते हैं। उनका करियर तो बड़े भाई बहन ही सेट कर देते हैं गाइडेंस के दम पे। कुछ के पेरेंट्स इस फील्ड में होते हैं जो इसी लाइन से जुड़े होते हैं, तो वो भी अच्छा गाइडेंस दे देते हैं। अब ये तो हर एक की पर्सनल सिचुएशन है। हम तो इस वीडियो के माध्यम से, हमारी कोशिश है कि आपको हम अपनी वो बातें बता सकें जिससे आपको कुछ एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प हो। और एक चीज यही है कि आप ग्रेजुएशन करके आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन से। अगर आपकी ग्रेजुएशन मान लीजिए एवरेज है, एवरेज इन द टर्म्स ऑफ कि आप उतना सेटिस्फाइड नहीं हो प्लेसमेंट से या ब्रांड ऑफ द कॉलेज, और या जो एक्सपीरियंस है, तो आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हो कवर। इसलिए उसमें ऐसा कोई डिसहार्टेन होने वाली बात नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और उसमें भी आपको दो चीज देखनी होगी कि आपको अगर इंडिया में करना है तो वो भी एक काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वो इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि फीस बहुत ज्यादा लोड मत ले लो ग्रेजुएशन टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेशन लोन में चले गए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में दिक्कत आ सकती है, फिर आपको थोड़ा डिले हो जाएगा वो पूरा प्रोसेस। तो ये भी एक है।
आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सो वी हैव लाइक एबल टू होप, आई एम होपिंग कि हमें एक अच्छा गाइडेंस, अच्छा करियर डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी विद दिस गाइडेंस ऑफ using how we can use strategy in choosing the like career. So we should not just focus on the fees, and we should not the only thing we should focus on the like college. We need to have some balance. We need to maintain some balance between the fees, college reputation, alumni network, an ad hoc thing which we can add in the deciding, like if we are going to the average college, then we can have additional courses to that. If we are going to the high ranking college, then we can pay the fees. But if we are going to maybe a undergraduate college, then we can save the fees, and we can do if that is not a high ranking college, then we can save the fees and we can do the post graduation. So, likewise, we can add some value, like we can change our career from red ocean to the blue ocean by changing our skills in that, by adding some more valuable skills, like maybe adding the language, some language, learning some language, or maybe learning some add-on courses like Microsoft, like SQL, or maybe PowerPoint, Excel, based on the career. It should just one thing I can say, that we should that add-on courses which we are deciding, it should complement the main course which we are actually pursuing. So that's one of the just I have tried to summarize the thing what we have done. Like, thanks everyone. Thank you, Mr. Rishabh, for your guidance and sessions. Thank you, thanks everyone. It was nice talking to you. Thank you so much.